یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن ضیائے ادب کی جانب سے اتراکھنڈ کے ضلع ہریدوار کے مادھو پور میں 5 اپریل 2021 کو ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد جشن سکندر حیات گڑبڑ کے عنوان سے ہوا۔ اس موقع پر صاحب جشن طنز و مزاح کے عالمی شہرت یافتہ شاعر سکندر حیات گڑبڑ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے AR خان، شمع روشن کی اروند پردھان نے، معزز مہمان رہے راؤ آفاق پور ادھیکش ضلع پنچایت ہریدوار، اور مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت MLA فرقان احمد۔ اس موقع پر کنوینر مشاعرہ ساحل مادھو پوری کی کتاب میری زندگی غزل ہے کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا۔ ایک اور بہت محترم لب و لہجے کو سماعت کرتے ہیں۔ قتیل شپاہی نے کہا تھا کہ درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ، پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ، میں نے تجھ سے چاند ستارے کم مانگے، روشن دل بیدار نظر دے یا اللہ، یا دھرتی کے زخموں کو مرہم دے دے، یا میرا دل پتھر کر دے یا اللہ۔ قتیل شپاہی کے ان 6 مصروں کے ساتھ جس میں درد بھرا دامن ہے، ہم اس شاعر کو آواز دیتے ہیں کہ جو اس درد کو سمیٹ لیتا ہے اپنی غزلوں میں، جس کے یہاں روشنی بھی ہے لیکن وہ روشنی چاند ستاروں کی نہیں بلکہ اس کی فکر کی روشنی ہے، جن کے یہاں دیوانگی ہے۔ یہ نام ہے جناب بلال سہارنپوری صاحب کا، ان کی یہ سسرال بھی ہے، ہمیں خوشی ہے، تو ابھی خوشی صاحب نے بتایا تھا۔ اچھا، تو بلال سہارنپوری سنجیدہ شاعری بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے مزاحیہ شاعری بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا پڑھیں گے۔ جناب بلال سہارنپوری۔ دیکھیے حضرات، وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے اپنا سفر شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سکندر بھائی کو ان کے جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو غزل کی شاعری میں سناؤں گا، اس سے پہلے کچھ قطعات پڑھتا ہوں۔ ہمارے ماحول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خود بخود ہماری شاعری میں آ جاتا ہے۔ ابھی ایک شخص نے اللہ کے رسول کے بارے میں بد کلامی کی، معاملہ حالانکہ FIR درج ہوئی، وہاں سے میں سلسلہ جوڑتا ہوں اور بالکل تازہ میں نے 4 مصرے کہے ہیں۔ جب میں سہارنپور سے چلا اور یہاں تک پہنچا تو میں نے راستے میں 4 مصرے کہے، یہیں سے اپنا میں سلسلہ جوڑتا ہوں۔ اسٹیج تمام معتبر لوگ بیٹھے ہیں، ان سے توجہ چاہتا ہوں، سب لوگ یہاں سے جی بھائی ملاحظہ کیجئے دوستو کہ قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو۔ واہ، الطاف بھائی، سکندر بھائی، خورشید بھائی، فقری صاحب، قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، آ جائے نہ جلال کہیں آسمان کو۔ واہ، کیا کہنے بھائی، قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، آ جائے نہ جلال کہیں آسمان کو۔ اور 1400 سال ہو گئے تاریخ پڑھ کے دیکھ۔ واہ، 1400 سال ہو گئے تاریخ پڑھ کے دیکھ، کوئی گھٹا سکا نہ محمد کی شان کو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ۔ ایک ہمارے اتر پردیش کے وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ میں کہ کلام پاک سے کچھ آیتوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ کیا کہنے تھے، اللہ انہیں تھے ہی کر دے۔ ملاحظہ کریں، 4 مصرے میں نے کہے۔ کل ایک شخص نے پوچھا سوال مفتی سے، وبا کا دور کیا ایسے گزار سکتا ہوں، وبا کا دور کیا ایسے گزار سکتا ہوں، اگر میں اب کے برس حج پہ جا نہیں پایا، اگر میں اب کے برس حج پہ جا نہیں پایا، وسیم رضوی کو کنکر تو مار سکتا ہوں۔ کیا کہنے یہ بھی اچھا، اگر میں اب کے برس حج پہ جا نہیں پایا، وسیم رضوی کو کنکر تو مار سکتا ہوں۔ 4 مصرے اسی میں اور جوڑتا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ پورے ہندوستان کے اندر جو کسان آندولن اور جو حالات اس وقت ہیں ملک کے، کہ اپنے بھارت کی حفاظت پہ اتر آئے ہیں،
अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए। हिफाजत पे उतर आए हैं। देश दीवाने शहादत पे उतर आए हैं। क्या कहने बिलाल भाई, वाह। अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं। देश दीवाने शहादत पे उतर आए हैं। और अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब तो मजलूम बगावत पे उतर आए हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब तो मजलूम बगावत पे उतर आए हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। एक शख्स ने अपनी बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ाने का काम किया, मैं नाम नहीं लूंगा। मुलाहिजा करें कि आईना देख के अरमान मचलते होंगे। आईना देख के अरमान मचलते होंगे। आईना देख के अरमान मचलते होंगे। और कुछ यूं भी ख्यालात उभरते होंगे। वाह। और कुछ यूं भी ख्यालात उभरते होंगे। उसको लगता है ये चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी, उसको लगता है ये चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी, दुनिया वाले उसे टैगोर समझते होंगे। क्या कहने भाई, वाह वाह। उसको लगता है ये चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी, उसको लगता है ये चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी, दुनिया वाले उसे टैगोर समझते होंगे। 4 मिसरे और मुलाहिजा करें कि अच्छे, अब मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ जा रहा हूं, कि अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। खुर्शीद भाई, अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। क्या कहने, क्या कहने। अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। क्या कहने बिलाल भाई, वाह वाह वाह। मुखबिर पुलिस के जितने थे, मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। एक मतलब और मुलाहिजा करें कि मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। क्या कहने। मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। वाह वाह। मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। क्या सच्चाई है। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। और जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। क्या बात है। जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो। वाह 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 वाह। जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो। और ये शेर भी मुलाहिजा करें कि आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो। एक नजर पड़ते ही उन पर खुल गया रोजा मेरा। बहुत खूब। एक नजर पड़ते ही उन पर खुल गया रोजा मेरा। दिल ने आंखों से कहा अब खूब इफ्तारी करो। वाह। दिल ने आंखों से कहा अब खूब इफ्तारी करो। फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। वाह। फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। फिर जुलेखा से कहो आओ खरीदारी करो। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। फिर जुलेखा से कहो आओ खरीदारी करो। और तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई इस सरकार से। वाह। तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई इस सरकार से। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। पहले हर आदमी, बस एक गजल पढ़ता हूं उसके बाद अपनी जगह लेता हूं, कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। बहुत खूब। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। बेशक, वाह वाह वाह। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, वाह। आपको शायरी सुनाता हूं कि ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। वाह 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 वाह। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। बहुत खूब। देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता। क्या बात है भाई, वाह वाह। देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। बहुत अच्छा। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था।
आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में, आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में। मैं खता करके परेशान हुआ करता था। क्या बात है, मैं खता करके परेशान हुआ करता था। अच्छा एक मतला और दो शेर मुलाजा बहुत अच्छी गजल पढ़ी भाई आपने, वाह वाह वाह। कि किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब, किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। वाह वाह वाह। किसी गरीब के रंजे मलाल का मतलब समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। और बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, वाह, बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर। उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। क्या कहना है, वाह वाह वाह। उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। और हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो, बहुत उम्दा। हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो, सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। भाई वाह 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 वाह। और आखिरी शेर और आपकी जहमतें तमाम कि सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से, जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से। किसी ने पूछा था रिज़्क़ हलाल का मतलब, किसी ने पूछा था रिज़्क़। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जनाबे बिलाल सहारनपुरी साहब। फुरकान साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, अभी तशरीफ लाएंगे कुछ देर के बाद। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना कीमती वक्त मुशायरे को दिया। राव आफाक साहब तो अभी वापस आ जाएंगे। बहरहाल मुशायरा जारी रहेगा और उनको कुछ काम है, उसके बाद वो लोग तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए जो इतना वक्त दिया आपकी बस्ती को। MLA साहब ने, राव साहब ने, गाजी साहब अभी यहाँ तशरीफ फरमा है। दोस्तों, बिलाल सहारनपुरी ने बहुत अच्छी शायरी पेश की और उन्होंने जमाने का सच बयान किया, आपके दिल का सच भी बयान किया। और जब बहुत सी खराबियां हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में आ जाती हैं तो जाहिर है कि इंसान सच बोलता है और पूरी कौम की नुमाइंदगी कर देता है। उसको ये खौफ भी नहीं होता कि सच बोलने का क्या अंजाम होगा। वो इसलिए कि वो अपने ज़मीर से शर्मिंदा होना नहीं चाहता है। और कोई इंसान तभी सच बोल सकता है कि जब वो अपने ज़मीर की अदालत में खुद को सही साबित करे। आइए जनाब बिलाल सहारनपुरी की शायरी के बाद। तो दोस्तों, ये था जश्न सिकंदर हयात गड़बड़, जी हाँ, ऑल इंडिया मुशायरा जो हमने आप तक पहुंचाया माधोपुर से। उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और मुशायरे देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए माधोपुर से।